Hello everyone, today we are going to learn organizational behavior, unit 2, attitude. So contents followed is attitude concept types, components of attitudes, formation of attitudes, emotions and moods. So first of all we will know what is attitude. Definition of attitude. Attitude is how you feel and react towards something positively, negatively or neutrally. Attitude वो है, वो फीलिंग है कि आप कैसा फील करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो किसी चीज को लेकर, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, न्यूट्रली. एटीट्यूड इज अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग. एटीट्यूड एक पर्सन की थिंकिंग हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है किसी चीज को लेकर जो उसके एक्सपीरियंस और लर्निंग से शेप्ड हुआ है. Attitude is a way of a person thinks, feels and behaves towards something or someone. It is a mental concept that shows how a person thinks or feels about an object, person, event or situation. It is a learned tendency to react in a positive or negative way. So, attitude can also be said that it is a state of mind. एक माइंड का स्टेट हो सकता है, एक वे ऑफ थिंकिंग हो सकती है एटीट्यूड, एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, एक फ्रेम ऑफ माइंड हो सकता है, एक आउटलुक ऑन लाइफ हो सकता है, एक अप्रोच टुवर्ड समथिंग, एक मेंटल पोजीशन टुवर्ड समथिंग, एक कोई थिंकिंग पैटर्न हो सकता है एटीट्यूड, या कोई पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है. सो लेट्स लर्न नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स. There are three types: positive attitude, negative attitude and neutral attitude. Positive when इट मीन्स थिंकिंग एंड फीलिंग गुड अबाउट पीपल, थिंग्स एंड सिचुएशंस. जब आप किसी चीज को लेकर पॉजिटिवली बिहेव करते हो या रिएक्ट करते हो, व्हेन यू फील गुड अबाउट दैट थिंग and takes positively and you found opportunities towards that thing and found solution everywhere rather than taking the or focusing on problems, it means your attitude is a positive attitude. For example is given, a student when saying I can do this if I try means ये उसका positive attitude show करता है कि I can do, मैं कर सकता हूँ if I try. The next is negative attitude. It means thinking or feeling bad. We are only focusing on the problem. The attitude, negative attitude only focus on problems and difficulties and never try to overcome from that. उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता and अपने मन के अंदर कैसे भी वो negative attitude रख लेता है. That I will fail no matter what. The third is neutral attitude. Neutral attitude means not having strong feelings. ना उसके लिए अच्छा है, ना उसके लिए बुरा है. He is indifferent or doesn't care much about it. He just think that I don't care about this topic. It shows that he is a neutral attitude person. So now let's come to the next topic, that is components of attitude. There are three components we follow of attitude, that is ABC model. A means affective, B means behavioral and C means cognitive. In the components, first component you take it as cognitive component. So it is made up of three interconnected parts often called ABC model. Cognitive component means it is basically about your thinking. It is about your knowledge or the information which is given to you, given to your mind. जब कोई चीज या कोई बात या कोई इन्फॉर्मेशन आपके माइंड पर अफेक्ट करती है या माइंड को पता चलती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट और नॉलेज रिगार्डिंग अ पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को लेकर जब आपका माइंड रखता है तो उस चीज को हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट. इफ अ पर्सन नोज दैट रेगुलर एक्सरसाइज, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं कि पर्सन को किसी ने एडवाइस दी, कोई इन्फॉर्मेशन दी कि रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ, तो दिस नॉलेज फॉर्म्स अ कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स एक्सरसाइज. ये अगर इस नॉलेज को लेकर कोई ह्यूमन अपने माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है कि एक्सरसाइज इंप्रूव कर रही है हेल्थ, इट्स पॉजिटिव, इट्स गुड, फीलिंग गुड, तो इट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. और इफ ही इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट लिसनिंग दैट रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ, तो इट मींस इट्स नेगेटिव. एंड इफ ही इज नॉट फीलिंग एनीथिंग, इट मींस न्यूट्रल एटीट्यूड. सो द नेक्स्ट लेट्स कम टू इफेक्टिव कंपोनेंट. इफेक्टिव कंपोनेंट इज डिफाइंड इन इटसेल्फ कि ये एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है. जब हम किसी चीज या किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, उस चीज को हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, हाउ वी टेक इट, दैट इमोशनल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स समथिंग. इट इज अबाउट लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फीलिंग पॉजिटिव, नेगेटिव टुवर्ड्स इट. व्हाट इज द इमोशन अबाउट इट. जब हमने एक्सरसाइज की बात हमारे अंदर किसी ने बताई, उस चीज को हम कैसे रिएक्ट करेंगे. इफ वी आर फीलिंग हैप्पी एंड मोटिवेटेड, वी आर फीलिंग पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड इट इज द फीलिंग वी कम, जो हमारे अंदर से फीलिंग आती है वो किस कंपोनेंट से आती है, अफेक्टिव. क्या कैसे अफेक्ट किया, पॉजिटिव अफेक्ट किया हमें, तो ये अफेक्टिव कंपोनेंट की ही सिचुएशन है. नेक्स्ट इज थर्ड इज बिहेवियरल कंपोनेंट. बिहेवियरल कंपोनेंट जब हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन भी दे दी, कॉग्निटिव कंपोनेंट ने के पास, अफेक्टिव कंपोनेंट के पास हमें एक इमोशन, फीलिंग भी आ गई पॉजिटिव, तो क्या हमारा पॉजिटिव होगा बिहेवियरल, क्या हमारा एक्शन या उसको लेकर इंटेंशन पॉजिटिव होगी, यस ऑफ कोर्स. फिर हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट वर्क करेगा उस चीज को लेकर कि कैसे, हाउ अ पर्सन इज लाइकली टू बिहेव और एक्ट बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड. वो एक्शन, अब क्या एक्शन लेगा, उसने पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्सरसाइज करना इज गुड फॉर हेल्थ, फिर उसे फील भी हुआ यस इट इज गुड फॉर हेल्थ, ही इज फीलिंग हैप्पी एंड मोटिवेटेड, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, यस ऑफ कोर्स ही विल बिहेव पॉजिटिवली एंड ही enjoys it exercise in daily, so he actually go to gym regularly because he enjoys it. So cognitive is overall thinking and knowledge given to the cognitive component, that is in our mind, what a person knows or believes. क्या हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन जा रही है, वो कॉग्निटिव कंपोनेंट है. और अफेक्टिव, जब हमें वो चीज सुनकर हमारे माइंड में फीलिंग या इमोशन आती है, दैट मीन्स हाउ अ पर्सन फील्स अबाउट इट.
Behavioral, that is the last final action taken by a person. How we act based on thinking or feeling. If we feel positively, we will behave also positively and take it seriously. Now, next come to there are certain examples. How next topic is attitude formation. Attitude formation is referred to the way people develop feelings, beliefs and evaluations about objects. एटीट्यूड फॉर्मेशन कब होता है? जिस तरीके से पीपल अपने अंदर फीलिंग्स या बिलीफ मानते हैं या किसी चीज को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी पीपल या सिचुएशन या आइडिया को लेकर इवैल्यूएट करते हैं, वो होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन. तो एटीट्यूड्स आर नॉट इनबॉर्न. एटीट्यूड्स बचपन से ही नहीं सिखाए जाते हैं या शुरुआत से ही नहीं आते हैं. वो हम वक्त के साथ सीखते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लेते लेते और शेप किया जाता है ओवर टाइम थ्रू डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस in our life. So psychologists describe attitude as a mental and emotional orientation that guides how individuals respond to their environment. So attitudes are formed through a mix of learning, personal experience and social influence. तो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, किन तरीकों से हम एटीट्यूड को फॉर्म कर सकते हैं? लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. अगर हम किसी एसोसिएशन से लर्न करते हैं, एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है. एटीट्यूड कैन फॉर्म व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बिकम्स लिंक्ड विद समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव. किसी चीज से हम एसोसिएट करते हैं. For example, if a child always receives candy at a specific shop, they may develop positive attitude toward the shop. Child को एक कैंडी मिल रही है एक शॉप से, तो वो किससे, मतलब कैंडी किससे रिलेट हो रही है? He feels happy to get the candy. तो कैंडी किससे रिलेट हो रही है? शॉप से. और शॉप किसकी है? शॉपकीपर की. तो कैंडी उसे मिल रही है, वो पॉजिटिव है उसके लिए, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव वो शॉपकीपर भी है जो उसे लिंक करके दे रही है. कैंडी इज लिंक्ड टू द शॉपकीपर, so he has positive feelings for the shopkeeper. So next, so attitude form for that shopkeeper will be positive for that child. The next is learning through rewards and punishments. जब हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है? When we get the rewards, the positive or the attitude will be formed, will be positive, and people develop favorable attitude towards them. If a student is praised, if he is praised or given the reward or appreciation, he feels positive. And certainly or similarly, if they are given punishments, he generates the negative attitude towards the other person. The next is learning through observation. Learning through observation means people often adopt attitudes by observing others, especially role models, parents, teachers. अगर for example a child seeing the parents respect elders may also develop a respectful attitude. जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए देखता है तो वो भी अपने माइंड में पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड जनरेट करता है. सो इट इज सेड दैट इट इज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के थ्रू एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है. Fourth is personal experience. How attitude is formed through taking the personal experience. Yes, of course. Direct interaction with objects, people or situations strongly influences attitudes. किसी एक पर्सन के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है तो जरूरी नहीं है वो सेम पर्सनल एक्सपीरियंस उसी पर्सन के साथ पॉजिटिव हो. Yes, various of bad experience में result in negative. अगर उस पर्सन के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो नेगेटिव एटीट्यूड. द फिफ्थ इज ग्रुप इन्फ्लुएंस. ग्रुप इन्फ्लुएंस या फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू एटीट्यूड फॉर्म होना. अगर हमारी ग्रुप में कोई एक चीज को लेकर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा भी उस चीज को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा. बट इन केस उस चीज को लेकर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा भी एटीट्यूड नेगेटिवली होगा. अगर हमारी फैमिली वो चीज नहीं पसंद करती तो हम भी पसंद नहीं करेंगे, हमारा भी एटीट्यूड नेगेटिव होगा. हमारे फ्रेंड्स नहीं चाहते कि हम वो करें, दैट विल बी negative. The next is cultural and religious background. Culture provides values, beliefs, traditions and influence people's attitudes toward work, family, gender roles. कभी कभी एटीट्यूड कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड को देख के भी फॉर्म होता है, क्योंकि फैमिली में क्या होता है, टुवर्ड्स वर्क कल्चर में क्या होता है. अगर वो चीज पॉजिटिव है तो वही पॉजिटिव है, कलेक्टिविज्म में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव है. सेवेंथ इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन. जब हम मास मीडिया और एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो उसको लेकर भी हमारा एक एटीट्यूड फॉर्म होता है उस चीज को लेकर. अगर मास मीडिया कम्युनिकेशन में किसी चीज को लेकर हमें पॉजिटिवली चीजें दिखाई जा रही है तो हम उस चीज को लेकर पॉजिटिव रहेंगे. बट अगर वही चीज किसी गलत चीज को फोकस करा रही है या नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है तो फिर हम भी उससे नेगेटिवली ही अफेक्ट होंगे. हमारा एटीट्यूड भी उस चीज को लेकर नेगेटिव ही होगा. द नेक्स्ट इज 8 कॉग्निटिव फैक्टर्स. कॉग्निटिव फैक्टर्स यानी एटीट्यूड ऑल्सो फॉर्म थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन. जब हम सारे प्रॉस एंड कॉन्स, सारे एडवांटेजेस, सारे डिसएडवांटेजेस जानते हैं उस चीज के बारे में, उस पर्सन के बारे में, लॉजिकली सर्च कर लेते हैं उस बुक के बारे में फॉर एग्जांपल, फिर इवैल्यूएट करते हैं. तो इफ वी आर लाइकिंग दैट people or liking that book or liking that research is done, हमें सारे advantages और disadvantages follow करते हुए भी if we are liking that, हमारा positive attitude है, then we have the positive attitude form. And if we are not liking it, that we are not satisfied, so we have the negative attitude to take that situation or that person towards that person. So the conclusion is, what is attitude? The important question, what are the types of attitudes? That is positive, negative and neutral. What are the components of attitude? There are 3 components, that is ABC model. And what are the sources of attitude formation? That is learning through association, rewards, punishments, observation, personal experience, group, family influence, culture, religious, mass and media, and cognitive evaluation.
These are only the last five important questions from this unit 2. That is, what is attitude? Explain in your own words with examples. You can write the definition and types of attitude, and you can also explain the example and explain the example also, and show the positively, negatively and neutrally attitude. So the next question number 2 is, explain the ABC model, that is components of attitude, with examples. So you will show all the ABC model components and explain with the examples. The question 3rd is, explain the sources of attitude formation with the help of different examples. You can show it about the learning from personal experience, mass and media communication, cognitive factors, learning from association, किसी चीज को एसोसिएट करके लिंक करने के बाद हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है. किसी कल्चरल या रिलीजियस बैकग्राउंड में जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं उनको लेके पॉजिटिव पीपल का एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव या न्यूट्रल. किसी चीज़ में या ग्रुप इन्फ्लुएंस हो सकता है, फैमिली या फ्रेंड्स जो सोचते हैं वैसा हो सकता है. एंड दैट इज लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करके, स्पेशली व्हेन वी सी आवर पेरेंट्स, वी ऑल्सो फॉलो दैट. सो थैंक यू. The next topic is, what are emotions? Emotions are strong inner feelings that arise when we respond to people, situations or events. Emotions वो strong inner feelings होती हैं जब हम किसी people को, किसी situation को या किसी event को लेके respond करते हैं. They are psychological states that influence how we think, feel and behave. Emotions are strong feelings that arise in response to a situation, event or thought. They influence our behavior. वो हमारे behavior को influence करते हैं, thinking को influence करते हैं, decision को influence करते हैं. Emotions help humans react quickly and communicate their feelings. Every emotion has 3 parts. Feeling, subjective experience; physiological response, how our body reacts; behavioral response, how we express it outwardly. So what we sense inside. Feeling is what we sense inside, example joy, fear. And physiological response, how our body reacts, fast heartbeat when afraid, smiling when happy. Behavioral response, how we express it outwardly, crying, laughing, shouting. Some of the 6 basic emotions are, according to Paul Ekman, there are 6 basic emotions, universal across all cultures. These emotions are biologically hardwired and are expressed similarly by all humans. So first is happiness. Happiness, what does happiness describe? A feeling of pleasure, a feeling of joy, a feeling of contentment. Expression shown of happiness is smiling, laughing, relaxed posture. So example, feeling happy when received good exam result. जब हमारे एग्जाम में रिजल्ट अच्छा आता है तो we feel happy. When we meet our friend after a long time, we feel happy. So it is the first emotion of our. Next is sadness. Sadness means a feeling of loss, a feeling of disappointment. कोई loss हुआ है, कोई disappointment हुई है, कोई sorrow है, we are upset. So how we express it? Frowning, crying, drooping posture, not happy, slow movements. We feel like. Example is feeling sad when a pet is lost. When जब हमारा pet खो जाता है या when someone close moves away, we feel sad. We feel upset. The third is fear, a response to a perceived threat or danger. फियर इज जब हमें ऐसा लगे कि हमारे पास कोई डेंजर आने वाला है, कोई थ्रेट है. तो एक्सप्रेशन कैसा होगा हमारा? वाइड आईज, टेंस मसल्स, क्विक हार्ट बीट, डिजायर टू एस्केप, बाहर निकलना है हमें उस सिचुएशन से. एग्जाम्पल क्या होगा? फीलिंग अफ्रेड व्हेन हियरिंग लाउड साउंड इन द डार्क और फेसिंग अ डेंजरस एनिमल. जब हम घने जंगल में खड़े होंगे और हमारे सामने एक लाइन होगा तो हाउ वी विल फील फियर. आवर हार्ट बीट विल बी वेरी फास्ट and we'll feel have a desire to escape from there. And next is anger. Anger means a strong feeling of displeasure or hostility caused by frustration, hurt or threat. Anger comes when we have a strong feeling with something जो हमें pleasure नहीं दे रहा है, जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, वो frustrate कर रहा है या हम hurt हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, या कोई हमें threat कर रहा है. So how we express? Frowning, glaring, clenched fist, raised voice. हम अपनी voice raise कर सकते हैं. Fist मतलब अपनी हाथ की मुट्ठी को बहुत तेज बांध लेते हैं. Glaring मतलब कि किसी को बहुत अलग तरीके से देखना. एंड वी फ्राउन तो मतलब बहुत एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वी फील एंग्री जब हम किसी की इंसल्ट करते हैं या कोई हमारी इंसल्ट कर देता है तो उस पर्सन को एंग्री फील होता है, या कोई हमारी बिलोंगिंग्स को तोड़ देता है, वी फील एंगर, वी फील एंग्री व्हाई ही टचेस इट. सो नेक्स्ट इज डिस्गस्ट. डिस्गस्ट इज अ फीलिंग ऑफ रिवल्शन और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल टुवर्ड्स समथिंग अनप्लीजेंट. एक फीलिंग है जो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल टुवर्ड्स समथिंग अनप्लीजेंट, जो हम बुरा है उसके लिए हम डिसअप्रूवल वाली स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है. तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है? रिंकल्ड नोज, कर्ल्ड लिप्स, टर्निंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल क्या है? फीलिंग डिस्गस्टेड बाय रॉटन फूड और अ फाउल स्मेल. वी डोंट लाइक दैट स्मेल ऑफ अ रॉटन फूड. So how our face? We feel wrinkled nose and curled lips. Why the smell is coming to us? So the last is surprise. How we are surprised? A sudden reaction to unexpected events. Expression क्या होगा? Raised eyebrows, widened eyes, open mouth. It means that we are feeling surprised when someone throws a birthday party for you unexpectedly. How you feel? You feel very happy, but वो unexpectedly हुआ है, आप नहीं सोच सकते थे, तो we feel that how it can be possible with widened eyes, open mouth and raised eyebrows. So what do we understand? That emotions are expression of our inner feelings. Emotion वो expression है हमारी अंदर की feelings के. Emotions are our first language. सबसे पहले हमें emotions ही आते हैं. Emotions are universal and inborn.
Role of culture on emotional expression. How emotions most of the times have an object. मतलब किसी चीज को लेकर ही हम इमोशन डेवलप कर पाते हैं, ये शो होते हैं हमारे इमोशंस. इमोशंस आर कंटीजियस. इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स हमें आनी चाहिए कि हमें हर वक्त सारे इमोशंस को कंट्रोल में भी रखना चाहिए. नेक्स्ट इज मूड. एन अनफोकस्ड रिलेटिवली माइल्ड फीलिंग that exists as background to our daily experience. एक अनफोकस्ड रिलेटिवली माइल्ड फीलिंग जो कि हमारे बैकग्राउंड को लेके एक्सपीरियंस करती है, हमारा मूड. मतलब पॉजिटिव इमोशंस एंड जॉब परफॉर्मेंस. मूड कॉन्ग्रुएंस इज अ टेंडेंसी टू रिकॉल पॉजिटिव थिंग्स व्हेन इट इन अ गुड मूड एंड वाइस वर्सा. मूड कॉन्ग्रुएंस है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को उस अच्छे से रिएक्ट करेंगे उस टेंडेंसी में, और नेगेटिव चीज़ों को अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो मूड कॉन्ग्रुएंस है. वो हमारा मूड है कि अनफोकस्ड रिलेटिवली माइल्ड फीलिंग आती है हमें किसी चीज़ को लेकर. अगर पॉजिटिव थिंग्स हो रही हैं उस टाइम पे तो अच्छा मूड, और नहीं हो रही है तो bad mood or dissatisfied. When someone is having good mood, work also is done faster. Yes, it is true. So it is thank you.